Hello students, today in this video we will do our second poem Wind by Subramanya Bharati. Firstly, I am giving brief introduction of the poem. In this poem, the poet describes the action of the wind. It breaks the stars of the windows, throws down the books on the shelf, and demolishes frail houses. But it has no effect on strong houses. It blows out weak fires, but it makes strong fires roar. The poet conveys the idea that nobody cares for the weak. The poet advises the weak ones to make themselves strong. Even the wind is on the side of the strong people. It was the introduction. Now we will start the poem. We will start the first stanza. Wind come softly. The poet says that wind come softly. Softly means slowly, धीरे धीरे. तो फर्स्टली वाइंड कैसे आती है? सॉफ्टली, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आती है. और द पोएट आस्क्स द वाइंड टू कम स्लोली स्लोली. Don't come very fast. Don't come as a storm. The poet requests the wind to come slowly and slowly. Don't come strongly. Don't break the stars of the windows. Then the poet again asks the wind, don't break the stars of the windows. खिड़कियों के स्टार से मत तोड़ो. Don't scatter the papers. Scatter means spread, फैलाना. Again the poet asks the wind, don't spread the papers in the room. कि कागज़ों को मत बखेरो, फैलाओ मत. Don't throw down the books on the shelf. Don't throw down. Throw down, put down, नीचे गिराना. The books, किताबें. On the shelf means अलमीरा. Shelf means अलमीरा. Again the poet requests the wind, asks the wind, don't throw down the books which are kept on the shelf. जो किताबें अलमारी पे रखी हुई हैं उनको बिखेरो मत. कवि हवा से रिक्वेस्ट करता है, कहता है. In other words, he asks the poem to come slowly and softly. Don't come strongly and don't harm the things which are kept in the houses. The next line, there looked what you did. Now the poet asks the wind, look what you did. What destruction you did. देखो आपने क्या कर दिया है. You threw them all down. You threw them all down. उन सब चीज़ों को आपने नीचे गिरा दिया है. Threw them नीचे गिराना, फेंकना. You tore the pages of the books. The poet tells the wind that you tore the pages pressed of the books में किताबों के, आपने किताबों की पृष्ठ फाड़ दिए. You brought rain again. Then the poet tells the wind that again you brought the rain with yourself. कि आप दोबारा से अपने साथ वर्षा ले आई. And you have brought heavy rain which cause destructions. और आप
भारी वर्षा लेके आई है जो बर्बादी का कारण बनती है। द नेक्स्ट लाइन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। देन द पोएट says that the wind is clever. It does not harm the strong people, strong things. It harms to the weak people and weak things. The poet says that you are very clever. आप बहुत चतुर हो। हवा को कहता है कि आप बहुत चतुर हो। पोकिंग फन, पोकिंग फन में लाफ एट, हंसना। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मीन द वीक पीपल, वीक थिंग्स। कवि हवा से कहता है कि आप कमज़ोर चीज़ों और कमज़ोर व्यक्तियों के साथ मजाक उड़ाती हो, उनको हार्म करती हो, नुकसान पहुंचाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल मीन वीक, कमज़ोर, फ्रेजिल। क्रम्बलिंग मीन लड़खड़ाती हुई, स्वेइंग, हिलते डुलते लड़खड़ाते हुए। हाउसेज मीन घर। द पोएट सेज दैट यू pull down the crumbling houses, the houses which are old, जो घर पुराने हैं, वीक हैं, उनको आप क्रम्बल करती हो, गिराती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग मीन डिकेइंग और ब्रेकिंग। आप दरवाज़ों को क्रम्बल करती हो, तोड़ती हो। यू क्रम्बल दोज डोर्स विच आर ओल्ड एंड वीक। आप उन दरवाज़ों को तोड़ती हो जो कमज़ोर हैं और पुराने हैं। यू डोंट हार्म द स्ट्रॉन्ग एंड न्यू डोर्स। इन अदर वर्ड्स द पोएट सेज दैट, wants to tell us that the wind harms only poor things, only weak things, only weak people. Crumble rafters, crumble rafters, rafter मीन ए वुडन बीम, कड़ी। आप यू क्रम्बल डाउन द रैफ्टर्स, आप जो रूफ की, जो छत की जो कड़ी है, छत को सहारा सपोर्ट देने वाली जो कड़ी है, उसको गिराती हो। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग वुड, आप लकड़ियों को तोड़ती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, आप जो वीक बॉडीज हैं उनको नुकसान पहुंचाती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, आप लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, इस प्रकार, इन दिस वे यू हार्म्स ऑल द वीक थिंग्स एंड वीक पीपल एंड यू आल्सो क्रम्बल द हार्ट्स ऑफ द पीपल। और आप जो दिल के कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके दिलों को भी क्रम्बल करती हो, नुकसान पहुंचाती हो, पल्पिटेशन बढ़ाती हो लोगों की। द वाइंड गॉड विनोज एंड क्रैशेज देम ऑल। एट लास्ट इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट वाइंड गॉड, हवा देव, विनोज, विनोज टू सीपरेट, उड़ा करके फेंकना। एंड क्रैशेज, क्रैशेज मीन कुचलना, देम ऑल मीन उन सबको। तो वाई द पोएट says to wind God that you winnows weak things and you crushes weak things and weak people. You destroy only weak things and weak people. You don't harm the strong people. Now we lead to the second stanza. He won't do what you tell him.
द पोइट सेज दैट ही हेयर वाइंड, यहाँ पे ही कौन है, वाइंड हवा। ही वॉन्ट डू, वह नहीं करेगी, वाट यू टेल हिम, जो आप उसे बताओगे कहोगे। अब कवि कहता है कि द वाइंड डोंट डू द थिंग, द एक्टिविटीज यू टेल हिम टू डू, जो आप उसे करने के लिए कहोगे वो चीज़ नहीं करेगी, वो एक्टिविटी नहीं करेगी। सो इसलिए कम आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, द पोएट आस्क्स द पीपल, द पोएट advises the people, let's all build strong homes. We should build strong homes so that the wind cannot harm the strong homes. हमें मजबूत घर बनाने चाहिए जिससे कि हवा मजबूत घरों को नुकसान ना पहुंचा सके। Let's joint the door firmly. Let's all joint link. Joint में लिंक करना, जोड़ना। द डोर्स में दरवाजों को, फैमिली में मजबूती से। द पोइट सेज दैट वी शुड लिंक आवर डोर्स फैमिली स्ट्रांगली, हमें अपने दरवाजों को मजबूती से जोड़ना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट वी शुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, वी शुड फेस द स्ट्रॉन्ग पीपल बाय यूनाइटिंग आवर सेल्व्स, बाय लिंकिंग आवर सेल्व्स, कि हमें इकट्ठा होकर के, जुड़ कर के अत्याचारियों का, नुकसान पहुंचाने वालों का फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस मीन्स एक्सरसाइज। द पोएट सेज दैट वी शुड एक्सरसाइज टू फॉर्म द बॉडी। फॉर्म मीन टू मेक स्ट्रॉन्ग, द बॉडी मीन शरीर को। तो कवि कहता है कि हमें अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, मेक हमें करना चाहिए, हार्ट में हमारे दिल को, स्टेड फास्ट में फर्म, अटल, स्ट्रॉन्ग। द पोएट आल्सो एडवाइजेज अस कि वी शुड मेक आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग सो दैट वी couldn't defeat by the strong people, strong wind, so that our heart doesn't move, doesn't feel weak in the hard times. हमें अपने दिल को मजबूत बनाना चाहिए जिससे कि हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें, हम कठिन परिस्थिति में अपने दिल को स्टेबल रख सकें। डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। देन द पोइट आस्क द पीपल डू दिस विच आई हैव टोल्ड यू इन द अबव लाइन्स, जो मैंने आपको ऊपर की जो लाइनों में बताया है उस कार्य को करो। द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विद अस if you do the above things, above works, then the wind will be friend with us, then the wind will not harm us, he will treat us in a friendly manner. यदि आप ऊपर बताए गए कार्य करोगे तो हवा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हमारे साथ फ्रेंडली व्यवहार करेगी। The wind blows out weak fires. The wind, हवा, blows out to extinguish. Blows out means extinguish, बुझाना। Weak fires means कमजोर आग। The poet again says to the people that the wind or strong people harms only the weak people or weak things. हवा केवल कमजोर आग को बुझा सकती है, स्ट्रॉन्ग फायर को नहीं। वी शुड आल्सो मेक आवर सेल्फ बॉडी, मेक आवर सेल्फ आवर
our body and our hearts strong. He makes a strong fire roars and flourish. The poet further says that the wind don't harm the strong fires. In spite of harming it, it helps to roar and flourish the strong fire. हवा जो शक्तिशाली आग है उसको बुझाने की बजाय क्या करती है, उसको हेल्प करती है, और जिससे कि हवा जोर से रोया करती है और फ्लोरिश थ्राइव प्रबल बनाना। तो शक्तिशाली आग को हवा रोयर करने में और फ्लोरिश करने में, प्रबल होने में और गरजने में हेल्प करती है, हार्म नहीं करती। His friendship is good. We praise him every day. His friendship is good. उसकी मित्रता यानी कि if we will be strong and firm, then our friendship with the strong people will be good. यदि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत, शक्तिशाली, एबल बनाएंगे, if we get all knowledge and we will do every activity which make us strong, then we will friend of all strong people. We praise him every day. If we will strong, then the wind and strong people will not destroy us, will not cause any harm us. Then we will praise the wind. We will not curse him. यदि हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो हम वाइंड जैसे भी आए, जो भी आए, उसका हम फर्मली फेस करेंगे, सामना करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। Dear students, I have explained you the poem. I think you have understood it. Try to read it yourselves also. Thank you.